Hey friends, this is Jatin here and I hope you guys are doing pretty good. So if you're meeting for the first time, my name is Jatin and I'm a test automation engineer and also dabbling on the world of DevOps. So in the last video guys, you have asked me to release some string related questions. So here it is. And here is the complete string tutorial along with some interview questions related to the topic of string. So how this particular tutorial is created is, पहले हम स्ट्रिंग को रिविजिट करने वाले हैं. टेक्निकली इट इज द स्ट्रिंग 101 वीडियो. अगर आप लोगों ने देख लिया है, आप लोग स्किप करके सीधा क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हैं. बट व्हाट आई विल एडवाइज इज कि जब स्ट्रिंग पढ़ ही रहे हो, एक बार पहले पूरे के टॉपिक को रिवाइज कर लो एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. You will get a better confidence. You will understand the code little bit better. As usual, whenever we will be solving any particular question, first I will be explaining you the question. उसका लॉजिक समझेंगे एंड देन वी विल बी राइटिंग द कोड. अब कोड दोनों को लिखना है, ठीक है. सो जैसे ही आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, आप वीडियो को करोगे पॉज एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग द कोड बाय योरसेल्फ. एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट यू गेट स्टक, you can watch the part where I am writing the code for your reference. Also guys, if you have faced any Java related questions which you want me to cover it off, you can put in the comment section of this particular video. I will be happy to take it off for you guys. Now, without wasting time, let's get started. Alright, welcome back to the class guys. And आज की क्लास में भी हम एक टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं. And that particular topic is string. Okay? Logic building के अंदर अगर आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे string related questions ही हमने डिस्कस किए हैं अभी तक. But string होता क्या है? ठीक है? String काम कैसे करता है? कभी मैंने उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की. But this particular lecture is going to be string 101. मतलब I will be revising string and at the same time the concept of the string, okay, how string works internally, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. So this particular class is going to be a little bit lengthy, so make sure ये आप तभी देखिए जब आपके पास टाइम हो. Alright, let's get started. Now if I ask you what is string, how do you define string? Okay, तो कुछ लोग बोलेंगे string is a class in Java, which is true, correct? फिर कोई बोलेगा string is a non-primitive data type, which is true because class है तो non-primitive data type भी होगा. Okay, but the right definition for string is string is a series of characters. मतलब जब आप एक कैरेक्टर बनाते हो, let's say I write over here character gender and I put over here just M. So character can only store single character, but string is a series of characters. उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स एक दूसरे का पार्ट होते हैं. इन द सेंस आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू डबल कोट्स जतिन. ऑलराइट, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? J is a character, A is a character, T is a character, I is a character and N is a character. So this is basically what you call as a string. When multiple characters are combined together, तो आपका string picture में आता है. Hope this particular part is clear to everyone. And if you notice carefully guys, पहला लाइन लिखा गया था कि string is a class in Java. आम तौर पे जब आप कोई क्लास बनाते हो तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है. You write something like this. Let's say bank is a class, so bank B is equal to new bank, right? So this becomes my class and this becomes my object. But the question that comes over here is कि string के मामले में हम object नहीं बना रहे. मैं सीधा लिख रहा हूँ string name equal to double quotes में value. This is what you call as a string literal.
ओके, दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ स्ट्रिंग लिटरल। अब वो क्यों करते हैं, अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। नाउ whenever you're creating a string, let's say ये string बनाया ना, ये वैल्यू है, ये मेमोरी में कहीं पे जाके स्टोर होने वाली है। सो ये मेमोरी में कहां पे स्टोर होती है? ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज। यू हैव योर स्टैक मेमोरी, ओके, you have your heap memory, you have your static memory coming into picture, the static keyword, and also you have something which is called as your string intern pool memory or string memory, whatever you call it, string intern pool. जब कभी भी आप कोई एक string literal बनाते हो ना, वो आपके string intern pool में store होती है। So if I have written string name equal to Jatin, so Jatin will be stored inside this particular memory. It's not going to be stored inside static. It's not going to be stored inside stack. It's not going to store inside heap. ना ही static में, ये जाएगा string intern pool में. Okay? So name, which is my reference, is going to point to a string which is present inside my string intern pool. Okay? अब बोलोगे क्यों? उसका रीजन है। लेट्स से आई राइट ओवर योर स्ट्रिंग अनदर नेम टू, मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं स्ट्रिंग नेम टू, और इसमें भी मैं जतिन स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू स्टोर जतिन ओवर हियर। नाउ व्हाट जावा डज इज द व्हाट जावा डज ओवर हियर ना, कि वो वापस से आपका जतिन वैल्यू इंटर्न पूल में स्टोर नहीं करेगा, एक और बार नहीं क्रिएट करेगा। ओके, इट इज जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ रेफरेंस कॉल नेम टू, एंड नेम टू इज ऑल्सो गोइंग टू पॉइंट टू द सेम जतिन विच इज प्रेजेंट इन माई स्ट्रिंग इंटर्न पूल। यानी भले मैंने दो वेरिएबल्स बना दिए, लेकिन हमारे जो स्ट्रिंग इंटर्न पूल में उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर है। अब बोलोगे फायदा क्या हुआ? मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। इज दिस पार्ट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट मेक सेंस कि नो मैटर हाउ मेनी वेरिएबल्स आई क्रिएट, लेट्स से आई डिसाइड टू क्रिएट अनदर वेरिएबल कॉल्ड स्ट्रिंग एक्स, और उसमें भी मैंने जतिन स्टोर कर दिया। क्या होने वाला है कि x is also going to point to the same Jatin which is present in my string intern pool. And because of this, you are not utilizing a lot of memory. Remember मैंने क्या बोला था? Java comes from a time where memory was a constraint. So we have to utilize the memory in the most efficient way. That is the reason strings are immutable. इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है? सो ओवर योर गाइज, सिंस जतिन इज प्रेजेंट ओवर योर, if I decide to modify it, this is J is in uppercase, A, T, I, N is in lowercase, and I want to create another variable. Let's call this particular variable as name, capital make. Okay, let's say this is also going to be string. Okay, so over here guys, what is going to happen? Let's say I try to store everything in uppercase. ठीक है, अब बोलो यार J तो लोअर केस में था, अब मैंने इसको अपर केस में किया, अब क्या हो रहा है? अब देखा जाए तो एक नया स्ट्रिंग बनेगा। ओके, एंड नेम इज गोना पॉइंट टू द वन विच इज गोइंग टू बी इन अपर केस। आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट मेक सेंस टू एवरीवन। ओके, सो एक बार अगर आपने एक स्ट्रिंग बना दी एंड उसके ऊपर आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, तो वो हमेशा एक नई स्ट्रिंग बनाएगा और वो आपके स्ट्रिंग इंटर्न पूल में ही स्टोर होगी। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? Okay, let me just rub this particular board. Over here guys, let's say मैं यहाँ पे लिखता हूँ string x. x में मैं स्टोर कर रहा हूँ वैल्यू a. What is this? This is a string literal.
सो ये कहाँ पे स्टोर होने वाला है? इज इट गोइंग टू बी स्टोर्ड इनसाइड द स्टैक मेमोरी? इज इट गोइंग टू बी स्टोर्ड इनसाइड द हीप मेमोरी? इज इट गोइंग टू बी स्टोर्ड इनसाइड द स्ट्रिंग इंटर्न मेमोरी? किस में स्टोर होने वाला है? स्ट्रिंग इंटर्न पूल में होगा. लेट्स से दिस इज माय इंटर्न पूल. ठीक है. नाउ ओवर हियर x करके मेरा एक पॉइंटर बनेगा, दैट इज माय रेफरेंस, एंड ये पॉइंट करेगा एक वैल्यू जिसका नाम है a. अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं. I try to modify this particular string. I write over here x is equal to a plus, okay, I put over here 1. So the output is going to be a1, yes or no? Anything that you add to a string becomes a string. Anything that you add to a string becomes a string. So what is going to happen? अब a1 करके एक नया string intern pool में आएगा, okay? एंड ये जो x है जो पहले a को पॉइंट कर रहा था, अब ये बाबा इसको पॉइंट करेगा. ठीक है. नेक्स्ट आई राइट ओवर x इज इक्वल टू a, और लेट्स से x इज इक्वल टू x प्लस 2. सो इट्स गोना बिकम व्हाट? a12. एनीथिंग दैट यू ऐड टू अ स्ट्रिंग बिकम्स अ स्ट्रिंग. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? a1 लो, a1 में 2 ऐड करो, a12 हो गया. अब वापस से a12 करके एक स्ट्रिंग बनेगा एंड x is going to point to this particular value. That is the reason I was saying कि strings are immutable. एक बार जो आपने ये string बना दी, उसको वो modify नहीं करता है, उसकी जगह पे वो एक नई string बनाता है. So strings are immutable. Strings are immutable. So any operation that you are doing, any modification you are gonna do on a string is going to result in creation of a new string in the intern pool. Is this particular part clear to everyone? Perfect? Okay, perfect. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको इंटर्न पूल क्यों बोला जाता है. सी, इंटर्न और इंटर्निंग का मतलब ये होता है कि इस पूल में ओनली डिस्टिंक्ट, दैट इज यूनिक वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड. You can have only unique value inside this particular pool. A1, A2, तीनों unique है ना. Let's say I write over here, I'm running out of colors, इतने पढ़े हैं फिर भी use नहीं कर पा रहा हूँ. Y equal to A, ये वाला statement लिखता हूँ. String Y equal to A. अब देखो, ध्यान से देखो, ये string literal है. Okay? So what is going to happen is, इन योर इंटर्न पूल पहले जावा चेक करेगा कि बाबा इसमें कहीं पे ए है क्या? हाँ, ए है. सो व्हाट जावा इज गोना डू इज, इस वैल्यू का रेफरेंस वो वाई बना देगा. ठीक है. सो इट इज नॉट गोइंग टू पुट ए अगेन. ए इसमें आ ही नहीं सकता. डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन इंटर्न पूल. दैट्स द रीजन इंटर्निंग का मतलब ये होता है डिस्टिंक्ट, that is unique values are always stored inside this particular pool, inside this particular memory. I hope this particular part is clear to everyone. Okay. Now the next thing that comes over here, string to class bhi hai, string to class bhi hai. So in interview they can ask the question is, if string is a class, why don't I write something like this in string A? Okay, or let's say I'm using a lot of A now. String name equal to new string, let's say Java. क्या मैं ये लिख सकता हूं? The answer is yes, you can write it. It's a class. It also has its constructor. You can also put the value over here. But the question that comes over here कि बाबा जब आप string को ऐसे बनाओगे, ठीक है, तो ये string की value, that is Java, ये कौन से memory में जाने वाली है? Is it going to go into the intern pool or is it going to go somewhere else? The answer to this particular question is
लुक एट दिस पर्टिकुलर कीवर्ड. क्या दिख रहा है? न्यू. जब कभी भी आपको न्यू कीवर्ड दिखे, आंख बंद करके बोल दो कि दिस पर्टिकुलर वैल्यू will be stored inside the heap memory. It's going to be stored inside the heap memory. So over here, a new memory will be used, that is going to be the heap memory, and Java will be stored over here. Okay, and name is my reference. Is this part clear to everyone? So, agar, let's say, I was having another variable called string n and इसमें मैं Java लिखता हूँ. ओके, सो ऑब्वियसली ये टाइप पे जब आप मैं लिखूंगा स्ट्रिंग n इक्वल टू जावा, ये कहाँ पे जाके क्रिएट होने वाला है? इंटर्न पूल में होने वाला है या हीप मेमोरी में होने वाला है? वेयर एग्जैक्टली इट्स गोना बी क्रिएटेड? इट्स गोना बी क्रिएटेड इन द इंटर्न पूल. तो यहाँ पे जावा क्रिएट होगा, पर क्रिएट होने के पहले जावा चेक करेगा कि बाबा इंटर्न पूल में जावा है क्या? नहीं है, तभी मैंने बनाया है. And n is going to point over here. Now, if you decide to write n, let's say name equal to n, what will be the output of this particular program? The output is going to be false. Even though name is storing or name is pointing to Java, n is pointing to Java, ये दोनों equal नहीं आएंगे क्योंकि इनकी मेमोरी लोकेशंस अलग है. ये दो अलग अलग जगह पे बन रहे हैं. ओके, सो व्हेन यू आर गोना डू नेम इक्वल टू n, दिस वन इज क्रिएटेड इनसाइड हीप मेमोरी, दिस इज गोइंग टू बी क्रिएटेड इन द इंटर्न पूल, एंड हेंस even though they have the same value, they are not equal. I hope this particular part makes sense. But at the same time, if I write over here string n1 equal to Java, okay, n1 equal to Java, what is going to happen? Another reference variable will be created and it's going to point to the intern pool mein Java ka value. And if you decide to write n1 equal to n, the answer to this particular statement is true because they are pointing to the same value inside the same memory location. I hope this particular part is clear to everyone. Okay? Yes? I hope bouncer nahi ja raha. Perfect. Can I go ahead? All right, cool. Take a break. Let me rub this particular stuff. Now guys, let's try to understand something more about string. Okay? अभी तक हमने क्या देखा कि अगर मैंने एक लिखा string name equal to Java, मेरे को बताओ कि ये वाली जो वैल्यू है ये कहाँ पे स्टोर होने वाली है. This is a literal. Literals are always stored inside which memory space? String intern pool. So this is my intern pool. And यहाँ पे Java store हो जाएगा. Tell me something special about intern memory. Intern memory में हमेशा unique values ही store हो सकती हैं. Only unique values can be part of my intern pool. So Java is not present inside my intern pool right now. That's the reason Java came over here. And name is going to point to this particular chap. Okay. Now let's say I create over here string name, or let's say n, okay, equal to new string Java. Now tell me where exactly this particular string will be created. Inside the string intern pool? Where? Inside the heap memory. This is my heap memory. यहाँ पे Java आ गया. And n will be pointing over here. Now tell me one more thing. Quick. Over here, if I write name equal to n, इसमें output मुझे true आने वाला है कि false आने वाला है? True आने वाला है कि false आने वाला है? इसमें आपको false आएगा output, because even though they are storing the same value, they are created in two different memory spaces. Is this part clear? Perfect. Now, tell me one more thing. अब मैं गेम खेलते हैं. यहाँ पे मैं लिखता हूँ string x equal to Java. अब मेरे को बताओ कि क्या Java intern pool में वापस बनेगा? The answer is no. But there will be one more pointer over here, x. Right? So जब आप लिखोगे यहाँ पे x equal to n, sorry, x equal to name, output क्या आने वाला है? True. So हम लोग literals इसके लिए यूज करते हैं कि अगर मुझे कंपैरिजन भी करना हो, मैं x equal to name लिख सकूं. ठीक है, ये चलने वाला है इसमें, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम इंटर्न पूल, दे आर स्टोरिंग द सेम वैल्यू.
आपको आउटपुट आएगा ट्रू. ठीक है. नाउ ओवर हियर लेट्स से कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है A. Let's say, what should I put over here? Surname. Okay, and surname equal to new string. Okay, let's say Sharma, whatever. Okay. अब ये कहाँ पे क्रिएट होने वाली है? ये हीप में होने वाली है एज यूजुअल. ठीक है, और ये हो गया मेरा सरनेम. नाउ ओवर हियर गाइस, मेरा गोल है कि ये जो स्ट्रिंग है जो मेरी हीप मेमोरी में बनी थी, इसको मुझे भेजना है इंटर्न मेमोरी में. क्या मैं कर सकता हूं? कैन आई कन्वर्ट कैन आई मूव अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग फ्रॉम द हीप मेमोरी टू द इंटर्न मेमोरी? कैन आई डू दैट? द आंसर इज यस. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट राइट ओवर सरनेम dot intern method and you can point it somewhere else or you can use the same reference, whatever you want, but I'm just going to change it to let's say S. So what is going to happen? पहले जावा चेक करेगा कि इंटर्न पूल में शर्मा है क्या, नहीं है तो बनाएगा. Okay, and then it's gonna create a pointer S over here. Is this part making sense now? Is this part making sense? This is what interning means, and this is the purpose of intern method. Intern method moves, or let's say creates a copy of string from heap memory to the string intern pool if the value was not present. अगर तो वैल्यू प्रेजेंट होती तो नहीं बनाता, सीधा पॉइंट कर देता, लेकिन वैल्यू प्रेजेंट नहीं है इसके लिए उसने बनाया. If the value is not present, only then it is going to go and create it off. I hope this particular part makes sense now. Perfect. Yeah. You will see that कि जब कभी भी हम लोग कोई स्ट्रिंग में मॉडिफिकेशन करते हैं, हम लोग स्ट्रिंग क्लास को यूज नहीं करने वाले. We don't use string class for modification. Why we don't use string class for modification? Because strings are immutable in nature. You cannot change the value, and even if I think that okay value update हो रही, value नहीं update हो रही, एक नया string बन जाएगा यहाँ पे, and because of that you will be not using the memory efficiently. In order to use the memory efficiently and to modify the string in the best possible way, you are not supposed to use string class. You are supposed to use a class which is called as string builder class. Okay, in interview they can ask the question, what is the difference between string builder and string class? पहला point ये बोल दो कि string is immutable, but string builder is mutable. What is immutable? Immutable मतलब जो change नहीं हो सकता. Okay, something that cannot be changed is immutable. So you cannot change the value of a string, but you can always change the value of a string builder. ठीक है, string builder बनाया ही इसके लिए ताकि आप उसमें modification कर सको. Whenever you have to modify an existing string, जैसे मुझे A1, A2, A3, A4 ऐसे करते जाना है, बार बार चेंजेस करते जाने हैं वैल्यूज के अंदर, आप इसको स्ट्रिंग में मत कीजिए. भले आपका प्रोग्राम रन हो जाए, लेकिन वो इतने सारे स्ट्रिंग बना के रखेगा इंटर्न पूल में कि यू आर वेस्टिंग मेमोरी. इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई वांट इज कि एक वैल्यू है उसी को बार बार मॉडिफाई करते जाओ. ठीक है, इफ आई वांट समथिंग लाइक दैट, स्ट्रिंग बिल्डर इज माय गाइड टू गो. ओके, द सेकेंड थिंग टू रिमेंबर इज, जब कभी भी आप एक स्ट्रिंग लिटरल बनाते हो ना, वो हमेशा स्ट्रिंग इंटर्न पूल में बनेगा, लेकिन string builder is always going to be created in the heap memory. Make a note of this particular point. String builder is always going to be created in the heap memory. I hope this particular part is clear to everyone. So this was the 101 which I wanted to take about string. Do let me know in the discussion section whether you really enjoyed this kind of a learning. I'll try to add more discussion related to the topic of string, arrays and hash map in the logic building sessions. Thank you so much. Okay.
and I'll be seeing you guys in the next one. Till then, take care. Bye-bye. All right, good morning everyone, and I hope you guys are doing pretty good. So आज की क्लास में हम एक important interview question को discuss करने वाले. Pretty simple, ज़्यादा difficult नहीं है. And the question over here is reverse only letters. Yes, that's the question. We have to reverse only letters. So we have been given a string, let's say bad color. Let's use a different color. So over here guys, let's say we have been given a string S1, okay, or let's say the string over here is going to be input, and I would say input is equal to 1 A B 2, 1 A B 2. हमको कुछ लॉजिक इस तरीके से लिखना है कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो आउटपुट आ जाए 1 B A 2. So if you observe carefully, numbers अपनी जगह पे हैं, रिवर्स क्या हो गए हमारे letters. So we have to only reverse the alphabets. We don't have to touch the numbers. It can be any combination. यहाँ पे आपके पास special characters हो सकते थे, okay? But to explain you the logic, I have just taken a very small string जिसमें numbers हैं और alphabets हैं. हमें बस alphabets की position change करनी. Is this part clear to everyone? ठीक है? So let's try to understand the logic for this particular scene. So over here guys, हमारे पास एक string है input. Obviously मुझे reverse करना है, मुझे positions को swap करना है. So technically I have to traverse this particular array. Simple. So हम क्या करेंगे पहले? क्या करने वाले पहले? इस input string को character array में convert करेंगे. So I will say input dot to character array as usual. इससे मुझे मेरा input array मिलेगा. Is this part clear to everyone? So अब मेरे पास इनपुट एरे में क्या होने वाला है? इनपुट एरे में हमारे रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स आ जाएंगे. दिस इज माई 1 कैरेक्टर, दिस इज माई A कैरेक्टर, दिस इज गोइंग टू बी माई B कैरेक्टर एंड दिस इज गोइंग टू बी माई 2 कैरेक्टर. इनपुट स्ट्रिंग को देखो, ये तो आउटपुट है मेरा. ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांट. अब जब कभी भी रिवर्स का वर्ड लिख के आए ना यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे लिख के आ गया ना रिवर्स, रिवर्स में हमेशा एक टेक्निक काम आ जाती है विच इज आर 2 पॉइंटर्स टेक्निक. ओके, शायद ऊपर जा रहा होगा, मैं वापस से लिख देता हूँ. रिवर्स में हमेशा आपको 2 पॉइंटर टेक्निक यूजफुल होती है. 2 पॉइंटर क्या होगा? मतलब मैं 2 पॉइंटर बनाऊंगा. ओके, वन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज लेफ्ट एंड द अदर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज राइट. अब मैं ट्रैवर्स करने की कोशिश करूंगा. लेफ्ट इंक्रीमेंट होगा, राइट डिक्रीमेंट होगा. लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा. सो ओवर हियर व्हेन वी विल एनकाउंटर लेटर्स और अल्फाबेट्स, हम उस पे जो भी वैल्यूज है, जो भी इंडेक्स पे वो जो वैल्यूज है उनको स्वैप कर देंगे. इज दिस पार्ट क्लियर? सो रिवर्स में जब कभी भी आपको वर्ड रिवर्स दिखाई दे, समझ लेना कि 2 पॉइंटर से हमारा काम हो जाएगा. सो ओवर हियर गाइस, अगर आप देखोगे लेफ्ट को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है 0 से. सो आई एम जस्ट गोना राइट ओवर हियर लेफ्ट इज इक्वल टू 0 विच इज ऑब्वियसली एन इंटीजर काइंड ऑफ अ वेरिएबल. सिमिलरली आई एम गोना क्रिएट राइट ऑल्सो, एंड राइट इज व्हाट? राइट इज द 3rd इंडेक्स. आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, या तो आप लिख दो यहाँ पे इनपुट एरे डॉट लेंथ -1. ठीक है, इनपुट एरे डॉट लेंथ -1, जो भी इसका लेंथ है उसका 1 माइनस कर. तो 4 है ना लेंथ, 4 में से 1 माइनस किया 3, राइट में आ गया 3. सो लेफ्ट ओवर हियर इज हैविंग द वैल्यू 0 एंड राइट ओवर हियर इज हैविंग द वैल्यू 3. ठीक है, अब हमें एक लूप लिखना पड़ेगा. लूप कैसे लिखेंगे? while left
इज लेस देन राइट। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है। क्या हो जाएगा जब लेफ्ट राइट से बड़ा हो जाएगा? एट व्हाट प्लेस राइट विल बी लेस देन योर लेफ्ट? जब लेफ्ट अगर थर्ड इंडेक्स पे पहुंच जाए और राइट हमारे सेकंड इंडेक्स पे हो, इसका मतलब है लेफ्ट ने पूरा का पूरा एरे ट्रैवर्स कर लिया है, या ओके हमने हाफ एरे या फुल एरे ट्रैवर्स कर लिया है, मतलब मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स शुड बी स्वैप्ड बाय नाउ। सो इसी के लिए what we are supposed to do is we have to run the loop till left is going to be less than right. ठीक है? If left is going to be less than right, मुझे क्या करना है? पहले देखना है लेफ्ट जीरो इंडेक्स पे है ना, क्या जीरो इंडेक्स पे एक लेटर है? क्या जीरो इंडेक्स पे लेटर है? नहीं, ये तो एक नंबर है, राइट? दिस इज अ नंबर। सो नंबर पे मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ना है। सो आई एम जस्ट गोना से if character dot is letter square bracket input array square bracket of left, मतलब इनपुट एरे के जीरोथ इंडेक्स पे, लेफ्ट स्टोरिंग जीरो ना, इनपुट एरे के जीरोथ इंडेक्स पे अगर तो मुझे एक लेटर मिलेगा, ठीक है, तो मुझे कुछ करना है। लेकिन अगर मुझे लेटर नहीं मिलेगा तो मुझे आगे बढ़ना है। So what I will do is I'm just going to negate this particular entire condition. I'm just going to say not character dot is letter input array of zeroth index. zeroth index पे 1 है, तो ये वाली कंडीशन हो गई false. false का उल्टा क्या होता है? true. So this particular condition is going to become true for this particular scenario and I will say लेटर नहीं है ना तो आगे बढ़ो, रुकने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट गोना से लेफ्ट को इंक्रीमेंट करो, ठीक है, लेफ्ट विल बी इंक्रीमेंटेड। सो लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे तो लेफ्ट भी आ जाएगा यहां पे। ओके, लेट्स से दिस इज लेफ्ट एंड लेफ्ट विल बी इंक्रीमेंटेड, सो दिस विल बिकम 1। सिमिलरली आई कैन हैव अनदर कंडीशन, एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ, ठीक है, सेम कंडीशन लिखूंगा, नॉट कैरेक्टर डॉट इज लेटर, मतलब कैरेक्टर क्लास डॉट इज लेटर इनपुट एरे ऑफ राइट। अब हम राइट का चेक करेंगे कि क्या राइट में मुझे नंबर मिल रहा है या अल्फाबेट मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको राइट में? मुझे एक नंबर मिल रहा है। कैरेक्टर डॉट इज लेटर इनपुट ऑफ राइट, इनपुट एरे ऑफ 3। 3 पे क्या है? 2। इज 2 अ लेटर? नो, 2 इज नॉट अ लेटर, 2 इज अ नंबर। सो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स का नेगेट क्या होता है? ट्रू। तो मैं बोलूंगा अगर लेटर नहीं है तो आगे बढ़ो। राइट को डिक्रीमेंट करेंगे, राइट को आगे नहीं जाना है, राइट को कम होना है, तो राइट यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो यहां पे। अब हमारे पास क्या स्टेट हो गई है कि अभी तक हमने क्या किया कि अगर तो मुझे लेफ्ट में कभी भी एक नंबर मिलेगा तो मैं सीधा उसको इग्नोर मार के आगे जाऊंगा। राइट में मुझे कभी भी कोई नंबर मिलेगा तो मैं उसे इग्नोर मार के डिक्रीमेंट कर दूंगा। बट अब क्या होगा जब मेरे पास लेटर भी आ जाएंगे, तो क्या करना है? तो इसके लिए मैं यहां पे लिखता हूं इसका एल्स इफ का पार्ट, ठीक है। अब अगर आप देखोगे हमारे पास जो लेफ्ट के 1 इंडेक्स पे है वो एक लेटर है, हमारे राइट इंडेक्स पे भी एक लेटर है, तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स होने वाली है। यानी दोनों में वो कभी लेफ्ट और राइट को इंक्रीमेंट नहीं करने वाला है और ना राइट को डिक्रीमेंट करने वाला है। तो अब मैं एक फाइनल एल्स कंडीशन बनाता हूं कि जब वी विल बी एनकाउंटरिंग लेटर्स, सो व्हेन वी विल एनकाउंटर अ लेटर, हम स्वैप करेंगे, ठीक है। स्वैप करना तो आता है आपको, टेम्प करके वेरिएबल बना दो, ओके। टेम्प आई एम जस्ट गोना से इनपुट एरे ऑफ लेफ्ट, ओके। बाद में यहां पे लिख दूंगा इनपुट एरे ऑफ लेफ्ट में इनपुट एरे ऑफ राइट की वैल्यू डाल दो एंड इनपुट एरे राइट में
टेम्प की वैल्यू डाल दो, बिकॉज हमारा लेफ्ट जो है वो ओवरराइट हो जाएगा, यानी जो ओल्ड वैल्यू बैकअप है हमारा वो टेम्प है। तो एल्स में आ गए। अभी एल्स में होने पे क्या होने वाला है, एक टेम्प करके वेरिएबल बनाया गया है, उसमें लेफ्ट की वैल्यू ली है, इनपुट एरे ऑफ लेफ्ट, इनपुट एरे ऑफ 1 इंडेक्स, उसमें ए को स्टोर कर दो। इनपुट एरे ऑफ लेफ्ट में इनपुट एरे ऑफ राइट, राइट में क्या है, राइट अभी 2 को पॉइंट करेगा ना, डिक्रीमेंट होके यहां पे आएगा। सो यहां पे बी, ओके, बी इज गोना बी रिटर्न ओवर हियर। देन इनपुट एरे ऑफ राइट इक्वल टू टेम्प, राइट में क्या स्टोर करना है आपको, टेम्प की वैल्यू स्टोर करनी है, टेम्प में क्या है, ए है, हो गया। रिवर्स ओनली लेटर्स, अगर आप देखोगे आपके जो बाकी नंबर्स हैं वो अपनी जगह पे हैं, सिर्फ जो लेटर्स है, जो अल्फाबेट्स है, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है। ओके, एंड वंस दिस इज डन, वंस द स्वैप इज डन गाइस, फिर से अगर आगे कुछ कंटिन्यू करना है तो आप यहां पे ही करोगे, आप यहां पे लिख दोगे, क्योंकि हमारे पास मैंने कंडीशन ही वैसे बना दी थी कि तीनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाए। बट हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लेफ्ट को इंक्रीमेंट करेंगे और राइट को डिक्रीमेंट करेंगे यहां पे भी। तो आप देखोगे कि तीनों कंडीशन में, पहली कंडीशन में मेरा लेफ्ट इंक्रीमेंट हो रहा था, दूसरी कंडीशन में मेरा राइट डिक्रीमेंट हो रहा था, लेकिन जो मेरा फाइनल कंडीशन है, जब मुझे लेटर्स मिलेंगे तब मैं उन्हें स्वैप करूंगा और मैं लेफ्ट और राइट को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करूंगा रिस्पेक्टिवली। एंड उसके बाद आपका डन, आपके पास एक एरे है जिसके अंदर सिर्फ लेटर्स स्वैप हुए हैं, नंबर्स नहीं हुए हैं, उनको प्रिंट करना है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। गो अहेड एंड राइट दिस पीस ऑफ कोड बाय योरसेल्फ, खुद से प्रैक्टिस करो, मैंने आपको पूरा लिख के दिखा दिया है रफली कि कैसे चलने वाला है। Try to write it by yourself. If you get stuck somewhere, you can watch the later part of the video where I'll be writing the code. You know how exactly it works. Also, make sure guys you mark your attendance in this particular video also. I want to know how many of you guys have completed this particular lecture. This question is a very important question. Okay. One tip as I've always given you कि जब कभी भी word लिख के आएगा reverse, समझ लेना कि इसका आंसर 2 पॉइंटर से सॉल्व हो जाएगा, 2 पॉइंटर बनाने ही पड़ेंगे। Is this part clear to everyone? चलो, go ahead, start writing. Welcome back to the lecture guys, and I hope आप लोगों ने कोड खुद से लिख लिया है। I'll be the most happiest person whenever you're gonna skip this part of the video, because at least मुझे लगेगा कि भाई लोगों ने कोड खुद से लिखा है and they are getting confident in building the logic as well as writing the code by themselves. I'll be the most happiest person. But anyways, just for the routine work, I have to start writing the code over here. Program था to reverse only letters. That's all I want to do over here. So I'm just going to quickly create the public static void main method. Minimize this chap. इसको यहाँ से निकाल देते हैं, थोड़ा सा zoom in करते हैं, and we'll start writing over here. The first thing over here is, let's say we have been given a string input, and input is going to have the value 1, AB2, something like that. Okay? मुझे आउटपुट पता है क्या आने वाला है, राइट? सो वी नीड टू फर्स्ट प्लान द आउटपुट ऑल्सो। द आउटपुट शुड बी 1, BA2, यानी बस लेटर्स या अल्फाबेट्स को स्वैप करो एंड द नंबर्स शुड ऑलवेज बी ऑन द सेम प्लेस। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम यूजिंग 2 पॉइंटर्स। सो लेफ्ट बनाते हैं, इंट लेफ्ट इक्वल टू 0 एज यूजुअल, इंट राइट इक्वल टू इनपुट डॉट लेंथ, ओके, -1। अब आप बोलोगे यार मैंने तो इनपुट एरे लिया था एंड देन आई सब्ट्रैक्टेड -1, राइट? इट्स फाइन, बिकॉज इनपुट डॉट लेंथ इज ऑल्सो गोना गिव मी 4 -1 इज 3, आंसर तो सेम ही आने वाला है, राइट? एंड देन आई वुड हैव क्रिएटेड माई कैरेक्टर एरे क्विकली। सो इसकी तो ज़रूरत पड़ने वाली है, इसको तो बनाना ही है, इनपुट कैरेक्टर एरे, इनपुट डॉट टू कैरेक्टर एरे। ठीक है, सब हो गया, रेडी, स्टार्ट करें। So over here guys, what I'm going to do is I'm going to write a while loop. While left is always going to be less than or right. मुझे तब तक करते रहना है जब तक लेफ्ट राइट से कम ना हो। जैसे ही ज़्यादा होगा हम इस लूप के अंदर जाने नहीं वाले हैं। I'm going to check if character dot is letter input array square bracket of left। अगर तो ये लेटर है, ठीक है, तो मुझे स्वैप करना है, लेकिन अगर ये लेटर नहीं है तो मुझे आगे जाना है। तो मैं इसके नेगेटिव वाली कंडीशन पे फोकस करना चाहता हूँ।
इफ नॉट कैरेक्टर डॉट इज लेटर इनपुट एरे लेफ्ट, तब मुझे बस लेफ्ट को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। अब सिमिलरली मैं एक कंडीशन को ही कॉपी कर लेता हूं, ओके, एंड आई एम गोना हैव माय एल्स इफ ब्लॉक कमिंग इनटू पिक्चर, ओके, एंड बस हमारा जो पॉइंटर है वो चेंज हो जाएगा। यहां पे हम राइट करेंगे, अगर राइट में लेटर नहीं है तो राइट को डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। और अगर मुझे लेफ्ट में भी एक लेटर मिल रहा है, राइट में भी एक लेटर मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो हमारे फाइनल एल्स ब्लॉक में जाएंगे, जहां पे मैं एक कैरेक्टर वेरिएबल बना दूंगा, कैरेक्टर टेम्प, ओके। मैंने जब आपको व्हाइट बोर्ड पे सिखाया था, मैंने वहां पे इंट टेम्प लिखा था, वो गलती हो गई थी, इट हैज टू बी कैरेक्टर टेम्प ना। सो व्हाट आई एम गोना डू इज कैरेक्टर टेम्प, आई एम जस्ट गोना से इनपुट एरे स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ लेफ्ट, इसको हम टेम्प में डाल देंगे, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम इनपुट एरे ऑफ लेफ्ट इक्वल टू input array of right and input array of right equal to temp, ठीक है। यहाँ पे हमारे वो कैरेक्टर्स अपनी पोजीशंस चेंज कर देंगे। उसके बाद आपको लेफ्ट को इंक्रीमेंट करना है एंड राइट को डिक्रीमेंट करना है। डन, डस्टेड, फिनिश। सो दिस इज द होल कोड फॉर रिवर्सिंग ओनली लेटर्स, ठीक है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया था, ये जो छोटी सी गलती हुई थी कैरेक्टर टेम्प वाली, उसको भी फिक्स कर दिया होगा अपने साइड पे। नाउ वंस दिस इज डन, जब हमारा व्हाइल लूप खत्म हो जाएगा, अब मुझे प्रिंट करना है ना, ठीक है। आपको एक नया टेक्निक सिखाता हूं। हमारा आउटपुट तो एक एरे में पड़ा है, हमारा आउटपुट एक एरे में पड़ा है, लेकिन मुझे उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में देना है, राइट। सो सम ऑफ यू गाइज माइट हैव रिटन समथिंग लाइक दिस, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे आप लोगों ने इनपुट एरे लगा दिया होगा। ये वाला एक तरीका होता है क्विकली, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, आपको ये आउटपुट आया होगा 1BA2। लेकिन अगर आप देखोगे 1,B,A,2, दूसरा आप लोगों ने किया होगा, या तो आपने एक फॉर लूप लगाया होगा, ओके, या फॉर ईच लूप लगाया होगा और इनपुट एरे से एक एक कैरेक्टर्स दे रहे हो, राइट। दैट इज समथिंग दैट यू वुड हैव डन. But there is one more smarter way to do that if you don't want to write all those things. This is important. Okay, एक नई चीज बता रहा हूँ, नोट कर लो. You're just gonna write away a new string. Okay, we're gonna use the string object, और string object के अंदर आप अपने array को पास कर दो, ठीक है. ये क्या करेगा, जितने भी उसके एलिमेंट्स से उनको कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बना देगा, ठीक है. So you're going to get the output as 1BA2. अब वो spacing नहीं है, इसके लिए वैसा दिख रहा है, but if I just give a space, it looks like this. And we are done. आपको ये वाली जो टेक्निक है जिसमें मैं एक नई स्ट्रिंग बनाता हूँ, एरे ही सीधा पास कर रहा हूँ उससे, वो एक बेटर अप्रोच हो जाती है इन टर्म्स ऑफ प्रिंटिंग द एलिमेंट्स. जब मुझे सिर्फ प्रिंट करना है, ओके, ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस वाले गेम खेलते तब ये थोड़ा बेटर हो जाता है, ठीक है. मतलब आप वो फॉर लूप लगा के भी कर सकते हो, बट इट्स जस्ट दैट यू आर गोना राइट लाइक 3-4 एक्स्ट्रा लाइन्स, और यही चीज़ मैंने एक ही लाइन में लिख दी, ठीक है. ऑल राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रोग्राम ऑफ रिवर्सिंग ओनली लेटर्स. Now, that's it for this particular lecture. I'll be seeing you guys in the next one. Till then, take care. Bye-bye. It gets easier. Huh? Every day it gets a little easier. Yeah? But you gotta do it every day. All right, welcome back to the class, guys. And in today's class, we'll solve a very interesting problem. I'm pretty sure आप लोगों ने ये problem solve किया है, which is reverse only vowels. ये वाला प्रोग्राम है ना, आपके पुराने 2 प्रोग्राम्स को कंबाइन करके बना हुआ है. अगर तो आपको याद है, मैंने एक लेक्चर लिया था रिवर्स ओनली लेटर्स. इनफैक्ट मैंने सेम टी शर्ट भी पहनी थी, ओके. अगर आपको कभी भी कोई स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो, ओके, या एरे को रिवर्स करना हो, तो आप उस पर कौन सी अप्रोच यूज करोगे? यू आर गोना यूज द 2 पॉइंटर अप्रोच. परफेक्ट. हम लोग एक पॉइंटर बनाते हैं, उसमें लेफ्ट, दूसरा बनाते हैं राइट, ओके. लेफ्ट इज गोइंग टू बी इनिशियलाइज विद द 0th इंडेक्स,
right will be initialized to the last index of the array. Okay, and then we'll just do left plus plus, right minus minus, और try करेंगे कि left कभी right को overtake ना करे. As simple as that. Similarly, हमने एक और प्रोग्राम लिखा था which was to count the number of vowels in a string. ठीक है, अब vowels तो आपको पता है A, E, I, O, U. ठीक है, A, E, I, O, U. हम ये दोनों को कंसिडर करने वाले हैं. So we have to check whether our character is part of this particular vowel list or not. अगर तो नहीं है, so अगर मैं यहाँ पे index of लगा दूंगा और whatever the character I am looking for, अगर वो इसका part नहीं है तो वो vowel नहीं है, तो यानी index क्या आने वाला है आपको इसका -1. ठीक है, मतलब अगर आपको index of any particular character in this vowel list is going to be -1, मतलब that is not a vowel. As simple as that. So इन दोनों लॉजिक को यूज करके ही आप ये रिवर्स ओनली वॉवल्स वाले प्रोग्राम को सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो जो पुराना वाला प्रोग्राम था जिसमें मैं काउंट कर रहा था वॉवल्स को, वो वाला एक बार प्रोग्राम देख लेना. एंड हाउ टू रिवर्स अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग और हाउ डू यू रिवर्स ओनली लेटर्स, वो वाले प्रोग्राम को भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेफ्ट और राइट पॉइंटर कैसे चलते हैं. ओके, और 2 पॉइंटर अप्रोच क्या है. ठीक है, बट एनीवेज मेरा तो जॉब है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम एक्सप्लेन करना. सो आई विल बी जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. Over here, we have to reverse only vowels, right? So let's say we have been given a string. Let's say the string over here is input. And let's say input is having the value inside it, hello. So आपको आपका प्रोग्राम कुछ इस तरीके से लिखना है कि जब वो एग्जीक्यूट हो जाए तो इनपुट में वैल्यू स्टोर होनी चाहिए HOLLE. तो अब अगर आप देखोगे मैंने क्या किया है, आपके जो नॉन वोवल वर्ड है वो तो अपनी जगह पर ही है, लेकिन रिवर्स क्या हो गए, स्वैप क्या हो चुके हैं, आपके वोवल्स ने अपनी पोजीशंस चेंज कर दी है. इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज व्हाट वी वांट टू बिल्ड. ठीक है, सेम है जो पुराना प्रोग्राम सॉल्व किया था ना, रिवर्स ओनली लेटर्स, सेम लॉजिक, 90% ऑफ द कोड इज सेम. ओके, only you have to just check for the vowels. So over here what we will do is, first we have the input, as simple as that. The second thing is I'm going to create a string called as vowel. Okay, and उसके अंदर मैं अपने सारे vowels को लोअर केस में भी लिखूंगा और अपर केस में भी लिख के रखूंगा. उसका रीजन ये है कि क्या पता अगर E कैपिटल होता, ओके, या तो आप पूरी की पूरी इनपुट स्ट्रिंग को लोअर केस में करो, या मैं ही उसको हैंडल कर रहा हूं अपने वॉवल स्ट्रिंग्स के अंदर. ठीक है, सो या तो लोअर केस हो या अपर केस हो, मैंने दोनों कवर कर लिया है इसमें. ठीक है, एंड नाउ व्हाट यू गोना डू इज यू गोना कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रिंग इनटू कैरेक्टर एरे एज यूजुअल. ठीक है, सो कैरेक्टर एरे, सो लेट्स से दिस इज कैरेक्टर एरे ऑफ इनपुट एरे इज इक्वल टू इनपुट डॉट टू कैरेक्टर एरे. सिंपल. ठीक है, अब आपको पता है ये करने पे क्या होने वाला है. एक एरे मिलेगा 0 1 2 3, यहाँ पे आपका H है, यहाँ पे आपका E है, यहाँ पे आपका L है, एक और L है, O. ठीक है, सब में कैरेक्टर्स ही स्टोर है. अब मैं 2 पॉइंटर बनाऊंगा. दिस वॉज द बेसिक सेटअप. Now we have to focus on the 2-pointer approach. So I'll be creating 2 pointers. मैंने पॉइंट नंबर दे के रखा है आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए कि कौन से लाइन पे मैं क्या करते जा रहा हूँ. So the fourth thing that I'm doing right now is I'm going to create 2 variables. Left को मैं initialize कर दूंगा 0 से. So this is my left. Okay. And this is going to be my right. So again I'm going to do int right equal to input array dot length -1. परफेक्ट. बस अब पूरी की पूरी कहानी सेम ही है, वापस से सब चीज़ें रिपीट हो जाती है एक टाइम के बाद. सो ओवर हियर यू कैन राइट अ व्हाइल लूप. व्हाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट. जब तक लेफ्ट राइट से कम है, ओके, अगर तो लेफ्ट राइट को क्रॉस कर देगा मतलब दोनों ने अपने 50-50% पार्ट को कवर अप कर लिया है, यानी आपने पूरा एरे कवर अप कर लिया है. ओके,
दैट्स द रीजन वी ऑलवेज गो कि लेफ्ट हैज टू बी लेस देन राइट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, इस बार वॉवल्स के लिए चेक करेंगे। लास्ट टाइम हमने लेटर्स के लिए किया था ना, इस बार वॉवल्स के लिए करेंगे। अब जो इसमें कंडीशन होगी वो सेम ही होगी जो पिछली बार हम लोग ने रिवर्स ओनली लेटर्स के लिए डाला था। द ओनली थिंग दैट आई विल ऐड ओवर हियर इज इफ वॉवल, ठीक है, ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये हमारा वॉवल है ना, वॉवल डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। अब ये जो कैरेक्टर आने वाले हैं ये मुझे मेरे पॉइंटर्स देते जाएंगे। सो आई एम जस्ट गोना से ओवर हियर डॉट इनपुट एरे स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ इंडेक्स, ठीक है, वॉवल डॉट इंडेक्स ऑफ इनपुट एरे ऑफ इंडेक्स, और सॉरी इनपुट एरे ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट डालना है मुझे यहाँ पर लेफ्ट, ठीक है। सो क्या एच हमारा वॉवल है, क्या एच हमारी वॉवल स्ट्रिंग में प्रेजेंट है? नहीं है ना, एच हमारी वॉवल स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है। तो इस पे क्या करना है मुझे, क्या मुझे स्वैप करना है इस पे मुझे कुछ नहीं करना है, बस आगे निकलना है। सो वॉवल डॉट इंडेक्स ऑफ इनपुट एरे ऑफ लेफ्ट, अगर तो ये -1 है, इक्वल टू -1, मतलब ये वॉवल है ही नहीं, तो आगे बढ़ो। सो आई एम जस्ट गोना से लेफ्ट प्लस प्लस। सिमिलरली you will do it for your right pointer also, else if vowel dot index of input array of right equal to -1, मतलब जो right में भी कैरेक्टर आ रहा है वो वॉवल नहीं है, बट वो वॉवल है, तो इसमें वो डिक्रीमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। सो राइट को माइनस माइनस करेंगे, और एक कंडीशन हम और कवर अप करके रखेंगे, वो मैं यहां पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए, विच इज द फाइनल एल्स ब्लॉक। एंड उस एल्स ब्लॉक में हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। रिवर्स लिखा है ना, तो स्वैप करना ही पड़ेगा। सेम कहानी है पूरी, अब तो क्या ही बच्चा है, आपको पता है स्वैप कैसे करना है। कैरेक्टर टेम्प बनाओ, ओके, टेम्प इक्वल टू इनपुट एरे, ओके, ऑफ लेफ्ट, फिर इनपुट एरे ऑफ लेफ्ट में आप राइट की वैल्यू डाल दो, इनपुट एरे ऑफ राइट, एंड देन इनपुट एरे ऑफ राइट में टेम्प की वैल्यू डाल दो। दिस इज हाउ यू स्वैप इट ऑफ ऑल द टाइम। बट इसके बाद आपको 2 लाइन और लिखनी है। कौन सी 2 लाइन है? आपको अब लेफ्ट को भी इंक्रीमेंट करना है और राइट को डिक्रीमेंट करना है। सो आई एम गोना से लेफ्ट प्लस प्लस एंड राइट माइनस माइनस, ठीक है। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? द सेम लॉजिक, यू नो हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। जस्ट फॉर द सेक आई विल डू इट ओवर हियर। अभी अगर आप देखोगे मुझे पहला कैरेक्टर एच मिल रहा है, तो वो लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर देगा। दिस इज नॉट व्हाट यू कॉल अ वॉबल, सो लेफ्ट विल बी इंक्रीमेंटेड, लेफ्ट कम्स ओवर हियर, ओके। अब राइट के लिए चेक करते हैं। इफ वॉवल डॉट इंडेक्स ऑफ राइट इक्वल टू -1, ये वॉवल है, ठीक है, यानी मुझे इस पर एक इंडेक्स मिलेगा, तो राइट डिक्रीमेंट नहीं होने वाला। लेकिन इस कंडीशन पे अब क्या होने वाला है कि लेफ्ट में भी एक वॉवल है और राइट में भी एक वॉवल है। अब ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, तो अब आपको फर्स्ट इंडेक्स पे 0 मिलेगा या O मिलेगा, और लास्ट इंडेक्स पे आपको E आ जाएगा। इज दिस पार्ट क्लियर? सो जैसे ये हो जाएंगे, लेफ्ट को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, राइट को हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब लोग दोनों यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब ये दोनों वॉवल नहीं है, फिर से सिंस दे आर नॉट वॉवल दे विल बी इंक्रीमेंटेड। फर्स्ट लेफ्ट विल बी इंक्रीमेंटेड, लेफ्ट इज गोना रीच ओवर हियर। अब इससे क्या होगा, लेफ्ट इज गोना बिकम इक्वल टू राइट एंड दिस पर्टिकुलर व्हाइल लूप इज गोना फेल। सो अब हो गया, अब ये व्हाइल लूप का पार्ट नहीं होने वाला है, बट व्हाइल लूप से बाहर निकलने से पहले उसने सारी स्वैपिंग कर दी। दैट्स द रीजन आई विल बी गेटिंग द आउटपुट एज HOLLE. I hope that's what we were looking for. Yes, that's it. As simple as that. So write this particular code exactly same है। मैंने बोला था ना 90% सेम ही है, ये वाला कोड तो चेंज भी नहीं हुआ, ओके। बस हमें the only thing which has changed over here is this, जो if और else if की कंडीशन थी वही चेंज हुई है, ठीक है। इजी पॉइंटर है। अगर तो ये क्वेश्चन आ गया इंटरव्यू में
तो आई होप यू विल बी एबल टू राइट द कोड. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोग्राम. इसमें गलत होने के चांसेस 0% है. ओके, सो प्लीज मेक श्योर यू प्रैक्टिस इट ऑफ प्रिटी वेल. अगर आपने रिवर्स ओनली वॉवल कर लिया है तो ऑब्वियसली आप काउंट भी निकाल सकते हो, काउंट ऑफ वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग, बिकॉज सेम लॉजिक है. मुझे इस बार उसमें 2 पॉइंटर की जरूरत नहीं होगी, उसमें सिर्फ सिंगल पॉइंटर की जरूरत लगेगी, क्योंकि मैं बस एक एरे को ट्रैवर्स करूंगा. अगर उसका इंडेक्स ऑफ में मुझे कोई नेगेटिव नंबर नहीं मिलता है, यानी -1 नहीं मिलता है, ओके, चाहे वो 0, 1, 2, 3 कितना हो, बस काउंट को इंक्रीमेंट करते जाओ. ठीक है, प्रैक्टिस द प्रोग्राम ऑल्सो. अभी अगर आपने रिवर्स ओनली वॉवल्स किया है, राइट, इसके बाद वापस जाइए एंड मेक श्योर यू प्रैक्टिस count the number of vowels in a string. But before that, I want you guys to write the code for the same. Can you do that for me? Perfect. Also mark your attendance in this particular video. Now I'll be seeing you in the later part of the video where I'll be writing the code. Is this part clear? Perfect. Cool. Let's get started. All right, welcome back to the lecture, guys. And I hope आप लोगों ने code लिख लिया था to reverse vowels in a string. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, पुराना जैसा प्रोग्राम था वैसा ही है. बट इन केस यू आर नॉट एबल टू राइट द कोड, नाउ इज द टाइम यू एंड आई विल बी राइटिंग द कोड टुगेदर. सो ओपन योर Eclipse and start writing the code along with me. Okay, so let's quickly create a class over here. I'm going to call this particular class as reverse only vowels. Okay. ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार इंटरव्यू में, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्वेश्चंस, राइट. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर 2 पॉइंटर एज वेल एज फाइंडिंग द वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग. तो उसका कॉम्बिनेशन है, इसी के लिए आपको मेक श्योर करना है कि ये और जो पुराना वाला प्रोग्राम था, कौन सा, रिवर्स ओनली लेटर्स, दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. और अगर आप वो दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ऑफकोर्स 2 पॉइंटर्स किस तरीके से चलता है वो भी समझ में आ जाएगा. And then you will be able to understand and manipulate the strings also. So, important question. Okay, now back to this particular class. So, let's say guys, we have been given a string input and input में value है hello, finish. ठीक है, अब हमको क्या करना है, सिर्फ vowels को replace करना है या swap करना है. So, output of this particular program should be something like this. Okay, now over here guys, what you're going to do is you're going to create a vowel string. Okay, एंड जो वॉवल स्ट्रिंग होगा ना, इसमें हमारे जितने भी वॉवल्स हैं वो लोअर केस और अपर केस दोनों में अवेलेबल होंगे. सो आई एम जस्ट गोना से AEIOU, AEIOU. ठीक है, नाउ ओवर हियर गाइस, मेरे पास एक और ऑप्शन ये होता कि मैं इनपुट को ही लोअर केस में कन्वर्ट कर देता, लेकिन अगर मैं इसे इनपुट को लोअर केस में कन्वर्ट करता तो आउटपुट के टाइम पे H, ओके, और वॉट एवर द स्टफ इज गोइंग टू बी इन अपर केस, सब लोअर केस में आ जाते हैं. सो इट इज अप टू यू वेदर यू वांट द आउटपुट इन ऑल लोअर केस और डू यू वांट टू कीप द केस प्रॉपरली इन द आउटपुट. सो दैट्स द रीजन आई वांट द लेटर पार्ट, मतलब जब भी मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ हमारे केसिंग को कुछ ना हो, इसी के लिए मैंने वॉवल स्ट्रिंग बना के रखी है और उसमें मैंने दोनों को कवर अप कर लिया, लोअर केस एज वेल एज अपर केस. ठीक है, now what you're going to do is you're going to convert your input string into a character array. So I'm just going to say this is my input array, okay, is equal to input. Is something wrong with my keyboard or what? पता नहीं यार, जब भी इस पे लिखता हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है. input dot to character array. ठीक है, now let's create 2 pointers, left equal to 0, int right equal to input array का लेंथ -1, राइट. क्यों लेंथ -1 कर रहा हूँ, बिकॉज इनपुट एरे डॉट लेंथ मुझे देगा कि कितने एलिमेंट्स है उसमें. इंडेक्सिंग होता है 0 to n-1, n इज द साइज ऑफ द एरे, सो दिस इज n, इनपुट एरे डॉट लेंथ इज द n-1, सो दिस इज द लास्ट इंडेक्स. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे while लूप की तैयारी. while लेफ्ट इज ऑलवेज गोना बी लेस देन राइट. क्यों लेफ्ट हैज टू बी लेस देन राइट, बिकॉज जिस टाइम पे लेफ्ट राइट से बढ़ गया, मतलब लेफ्ट ने अपना पूरा 50% कवर अप कर लिया है, अब वो राइट के आगे चला गया है, वो राइट के एरिया में आ रहा है. ओके, और राइट ने तो पूरा ट्रैवर्स कर ही लिया होगा, तो दोनों ने अपना अपना 50% कर लिया है एंड दे आर एट द मिड राइट नाउ. ठीक है, एंड द मोमेंट दे क्रॉस ईच अदर,
it means you have already traversed the array. 50% was done by the left pointer, 50% was done by the right pointer. बचा क्या? Okay, तो अगर वो लोग left right से बड़ा निकला, मतलब left has entered the right region. So those elements have already been traversed. So over here, guys, हम क्या करेंगे? We are going to check if vowel string dot index of input array square bracket of left. मतलब vowels string dot index of input array of left, यानी let's say left was pointing to this h character. क्या h is a vowel? No. अगर h vowel नहीं है तो उसका index कितना निकलेगा? -1. So over here I'm just going to say if it is equal to -1, if it is equal to -1 मतलब ये vowel नहीं है तो लेफ्ट को क्या करना चाहिए? लेफ्ट को आगे बढ़ना है. ओके, लेफ्ट को वहां पे रुकना पड़ेगा जहां पे हमें एक vowel मिलता है. So I'm just going to say left plus plus. Similarly we will just copy the same condition. हम लोग एक else if लगा देंगे. ओके, और अब राइट के लिए चेक करेंगे. ठीक है, राइट जिसको पॉइंट कर रहा है क्या वो एक वॉवल है? अगर तो वो वॉवल नहीं है तो हम राइट को डिक्रीमेंट करेंगे. ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर? एल्स दिस इज वेयर लेफ्ट एंड राइट दे बोथ आर पॉइंटिंग टू द रिस्पेक्टिव वॉवल्स. सो ओवर हियर हम यहां पे स्वैप करेंगे. तो आप यहां पे टेम्प वेरिएबल बना लो. आई एम जस्ट गोना से टेम्प इक्वल टू इनपुट एरे square bracket of left. Then I'm just going to say input array square bracket of left equal to input array square bracket of right. यानी जो भी right का element है वो left में डालो. उसके बाद input array of right equal to temp. ठीक है, बिकॉज इसमें हमारा लेफ्ट का वैल्यू चला जाएगा, लेकिन हमने स्वैप करने के पहले हमने लेफ्ट का एक बैकअप बना के रखा था, दैट इज टेम्प. सो वी आर गोना यूज टेम्प फॉर स्टोरिंग इट इनसाइड द राइट इंडेक्स पोजिशन. वंस दिस इज डन, आपका हो गया स्वैपिंग. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सीधा एक सिस आउट मारूंगा. सिस आउट में लिख दूंगा आउटपुट. ओके, थोड़ा सा स्पेसिंग देंगे. एंड आई होप यू रिमेंबर हाउ एग्जैक्टली यू कैन जस्ट प्रिंट द array in a string format. So new string और यहाँ पे आप अपना input array लिख दो. Finish. ठीक है. So just for you guys, this was the main input. Sys out. Let's say input and output में हमें हमारे जो vowels हैं वो swap मिलेंगे. So I'm just gonna right click, run as Java application and let's see. I still made a mistake over here. क्या mistake था यहाँ पे? यहाँ पे मुझे हमारे left को increment करना है और right को decrement करना है. ये मैं भूल गया था. So please make sure this is very important. You make the left incremented and right decremented. That's the reason I entered into an infinite loop. So अब अगर मैं इसे run करूँगा, tada, done, finish, works. Alright, so very simple program guys. I hope you have understood this particular part. Please make sure आप इसे अच्छे से practice करो and make sure जब कभी भी आप लोग कोड लिखो ना, speak it out loud. एक एक लाइन खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो. इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. You will be able to understand what exactly that particular expression means, okay, and why you are writing the code. Because in interview, right, not only you have to write the code and show the output, but sometimes you have to also explain the code to the interviewer. ठीक है? So make sure जब भी आप प्रोग्राम प्रैक्टिस करो, आप उसको जोर से, okay, अपने आप को एक्सप्लेन करो. It doesn't matter कि आसपास के लोग सोचेंगे कि आप पागल आदमी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. As long as you are confident, you are able to explain the code to yourself, you are doing a great job. Okay, with that said, let's stop over here and I'll be seeing you guys in the next one. Till then, take care. Bye-bye. Alright, good morning everyone and I hope you guys are doing pretty good. So आज की क्लास में हम एक important logic building program को समझने की कोशिश करेंगे.
which is count the frequencies of characters in a string. Now over here, this question is very important because it has been asked 7 times recently. ठीक है? Particularly for SZs only I'm talking about. And this is a lead code question. Now let's try to understand this particular question. We have been told that there is a string input. Let's say there is a string input which has a value madam over here. Now if you look at madam, आप मुझे बताओ कि ये individual characters कितनी बार आए हैं? M आपको कितनी बार दिख रहा है? 1, 2. So M is coming 2 times. A is coming how many times? So over here A is coming 2 times, right? So your output should also have A as 2. And D कितनी बार आ रहा है? 1 बार. So we have to write the logic in such a way कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो मुझे हर एक कैरेक्टर का काउंट दिखे. ठीक है? So I have to tell M is coming 2 times, A is coming 2 times and D is all coming 1 time. Is this part clear to everyone? Now whenever you see a problem like this कि जिसमें मुझे एक रिलेशन दिखानी पड़ रही है, M मेरा एक कैरेक्टर है ना, और मैं उसका काउंट बता रहा हूं कि वो कितनी बार आया. A मेरा एक कैरेक्टर है ना, और मैं उसका काउंट बता रहा हूं कितनी बार आया. Over here we have a relation between this character and a count, or I would say we have a relationship between this character and integer. ठीक है? So whenever you have a relation between a key versus its value, you are supposed to use your map data structure. Now just couple of important points about maps that you're supposed to remember. Map is an associative array. Associative array मतलब क्या होता है? एक ऐसा array जिसमें की और वैल्यू होती है. डिक्शनरी जो आप यूज करते थे किसी जमाने में, that is also an associative array, because उसमें word होता है और word के बाजू में उसका meaning आ जाता है. That is also an associative array, because there's a relationship between key and value. The second thing that comes into picture is कि ये जो map होता है ना, map के अंदर कभी भी duplicate keys नहीं हो सकती. Duplicate keys are not allowed in your map. Okay? Is this part clear to everyone? Now, one last important thing that you're supposed to know is the time complexity or the performance of your map is constant in terms of searching, insertion. Okay? जब भी मुझे कोई एलिमेंट को सर्च करना है या मुझे कोई एलिमेंट के इंसर्ट करना है, so it is going to give me a constant time complexity. This is a very important point you're supposed to know. Okay, now without wasting time, let's try to understand the logic of this particular program. Now, let's see. मेरे को ये string दिया गया है and I have to get individual characters. I have to get the individual characters. So when I'm saying that I have to get the individual characters, I have to go from left to right. M चाहिए, मुझे A चाहिए, D चाहिए, A चाहिए, M चाहिए, right? Now, technically it looks like कि अगर ये एक array होता, तो मैं सीधा एक for loop लगा देता, right? मैं एक सीधा for loop लगा देता and I will be able to get the individual characters. Is there a way? Is there a way that you can get the individual characters of this particular string? Or let me rephrase the question. Is there a way I can convert a string to an array? Is there a way? Yes, we do have a way. And what we can do is we can use the string inbuilt method called toCharacter array. जैसे ही मैं toCharacter array method को use करूंगा हमारे string के ऊपर, मेरे पास एक array बन के आएगा. And this particular array is going to be of character type. मतलब इस कैरेक्टर एरे के अंदर मेरे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स स्टोर मिलेंगे. इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? सो हाउ कैन आई डू दैट पार्ट? आई कैन जस्ट सिंपली राइट ओवर हियर इनपुट डॉट टू कैरेक्टर एरे, एंड सिंस इट्स गोना गिव मी अ कैरेक्टर एरे, आई हैव टू क्रिएट अ कैरेक्टर एरे फॉर अस. लेट्स कॉल दिस एज इनपुट एरे. अब मुझे इस एरे को ट्रैवर्स करना है.
आई होप आप सबको पता है कि एरे को किस तरीके से ट्रैवर्स कर सकते हैं. आप फॉर लूप यूज कर सकते हो, फॉर ईच लूप यूज कर सकते हो. फॉर द कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड मेकिंग द कोड लिटिल बिट सिंपल, आई विल बी यूजिंग योर फॉर ईच लूप. सो आई एम जस्ट गोना से आई एम गोना गो टू दिस इनपुट एरे, और यहां से ये इनपुट एरे क्या स्टोर कर रहा है? ये इंडिविजुअल कैरेक्टर स्टोर कर रहा है. सो आई हैव टू क्रिएट अ नॉर्मल वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर टाइप, एंड सिमिलरली मैं यहां पे सिस आउट कर सकता हूं. सिस आउट x, खत्म कहानी. Is this part clear? So when you're going to run this particular program, you will be technically printing the individual characters. Clear? अब मुझे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स तो मिल गए. अब मैं क्या चाहता हूं, मुझे इन कैरेक्टर्स का काउंट भी स्टोर करना है. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ मैप्स. सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना क्रिएट अ हैश मैप, एंड दिस हैश मैप इज गोइंग टू रिक्वायर टू थिंग्स. पहली मुझे की देनी पड़ेगी, एंड द सेकेंड थिंग दैट आई एम सपोज टू गिव इज वैल्यू. परफेक्ट. अब अगर आप देखोगे कि आउटपुट में मुझे पहले कैरेक्टर दिखाना है, एंड देन आई हैव टू गिव द वैल्यू. वैल्यू का डेटा टाइप क्या आएगा? इंटीजर, राइट? सो आई हैव टू क्रिएट अ मैप विच इज गोइंग टू बी ऑफ कैरेक्टर एंड इंटीजर टाइप. सो यहां पे इसकी जो की है ये होगी हमारी कैरेक्टर टाइप की, और जो वैल्यू होगा वो होगा इंटीजर टाइप. इज दिस पार्ट क्लियर? एंड आई एम गोना कॉल दिस, लेट्स से, एज फ्रीक्वेंसी मैप. Okay, and I can just write over a new hash map, okay, of your character and integer. Okay, मैं यहाँ पे बस इसके शॉर्ट फॉर्म्स लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि C का मतलब है कैरेक्टर, I का मतलब है इंटीजर, एंड द राउंड ब्रैकेट फॉलोड बाय अ सेमीकोलन. जैसे आप ये स्टेटमेंट लिखते हो, आपके पास एक हैश टेबल बन जाता है. ठीक है, एंड ओवर योर दिस हैश टेबल बेसिकली इज गोइंग टू हैव द first column as your character. So this is where my character is going to be stored, and this is where my integer, okay, or the values are going to be stored. The count is going to be stored. So this integer basically signifies the count of each character. और हमने ट्रैवर्स तो कर लिया है. ये था मेरा array, right? 0 1 2 3, okay, 4 M A D A M. This is my input array, and technically इसका जो snippet है ये कुछ ऐसा दिखेगा. For input array, okay, from the input array we will get individual character. So let's say this is my character X, okay, and whatever the operations are going to be performed, it's going to be performed inside this for each loop. Now over here guys, मैं क्या चाहता हूं कि मुझे जैसी फर्स्ट कैरेक्टर मिले मैं उसको मैप में जाके स्टोर कर देना चाहता हूं. यानी जब ये फॉर ईच लूप रन होगा, x के अंदर m की वैल्यू आएगी. फर्स्ट m आएगा, देन a आएगा, फिर d आएगा, फिर a आएगा, फिर m आएगा. सो ऐसे मुझे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स मिलते जाएंगे, और वो सारे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स मुझे इस मैप के अंदर स्टोर करने. कैसे करूंगा? आई एम जस्ट गोना राइट ओवर योर फ्रीक्वेंसी मैप डॉट पुट, ओके, एंड आई कैन जस्ट से x, comma, this is the character that we are trying to store, and इसके बाद मुझे इसकी काउंट स्टोर करनी है. सो अब ध्यान से देखो इस लूप को किस तरीके से रन हो रहा है. फर्स्ट मेरे पास x में m आने वाला है. ठीक है, इज m प्रेजेंट इनसाइड दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे? नो. सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे पुट कर रहा हूं. पुट मतलब आप इसे पुट कर दो अपने मैप के अंदर. ओके, वी वांट टू स्टोर इट इनसाइड द मैप. सो व्हेन यू गोना डू अ पुट, दिस कैरेक्टर m विल बी स्टोर्ड ओवर हियर. बट काउंट क्या होना चाहिए? पहली बार आया ना, सो व्हाट शुड आई पुट अ काउंट ओवर हियर? काउंट शुड बी एन इंटीजर वैल्यू. व्हाट शुड आई पुट ओवर हियर? यू विल से 1 पुट कर दो. ठीक है, मैंने 1 पुट कर दिया. ठीक है, सो m और 1 आ गया. अब ये सेकेंड टाइम आपका लूप रन होने वाला है फॉर a. नाउ वी आर गोना ट्राई टू स्टोर a ओवर हियर, एंड a का काउंट कितना आएगा? 1. सो आई एम गोना स्टोर 1 ओवर हियर. सो a यहां पे स्टोर हो गया, 1 आ गया. परफेक्ट. अब मैं d स्टोर करना चाहता हूं, सो d भी स्टोर होगा और फिर 1 आ जाएगा यहां पे. अब वापस से मेरे पास a आ रहा है.
अब व्हाट शुड हैपन ओवर हियर कि जैसे ही a आता है, ठीक है, it is going to store a over here. But how exactly your map works is map में duplicate keys allowed नहीं है, यानी मैं एक और a की एंट्री नहीं कर सकता. a is already present over here. So a के अंदर वैल्यू अपडेट हो जाएगा. But since you have written 1, ये 1 plus 1 नहीं करने वाला. a इसकी वैल्यू को निकाल के यहाँ पे 1 वापस से लिख देगा. And this is wrong. It should have become 1 plus 1, right? It should become 2. Similarly for m, the last character, it should have taken m का value as 2. But because you are directly putting the value 1 over here, it is going to create the problem. Now to overcome this particular problem, what we will do, हम directly 1 नहीं put करेंगे, हम पहले check करेंगे कि क्या वो character हमारे map के अंदर present है या नहीं. And उसको check करने के लिए we will be using a inbuilt method from your map. And that is your frequency map. Just put the name frequency map dot get or default value. Make a note of this particular method, get or default value. Get the default, get or default of your character, whatever the character you are traversing. Okay. And अगर वो character नहीं मिला तो मैं उसके लिए 0 रिटर्न करूंगा एंड उसके बाद में 1 ऐड करूंगा. मतलब फर्स्ट टाइम अगर हम इस m कैरेक्टर को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट ये पहले चेक करेगा कि बाबा m प्रेजेंट है क्या. इसमें m प्रेजेंट नहीं है तो 0 रिटर्न करो. 0 प्लस 1 1. सो अब m प्लस 1 आया. अब सेकेंड टाइम वो a ऐड करेगा. क्या a प्रेजेंट है क्या यहाँ पे, क्या a प्रेजेंट है यहाँ पे, नहीं है, तो वो 0 रिटर्न करेगा. And 0 plus 1, which is going to become 1. So A और 1 ऐड होगा. थर्ड टाइम हम D ऐड करेंगे. क्या D प्रेजेंट है यहाँ पे, नहीं, तो वो 0 रिटर्न करेगा. 0 plus 1, which is going to become 1. Now for the next character, which is this A character, हमारे पास M की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 1 थी, राइट? लेकिन अब अगर आप देखोगे फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट वो पहले चेक कर रहा है कि A प्रेजेंट है क्या, प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू लाओ, उसकी वैल्यू 1 है. So 1 plus 1, that is going to become 2, and this 1 is going to be removed and 2 will be kept over there. Is this part making sense to everyone? This is the most important part of this particular program where you have to use get or default method so that you can get the original count which is there inside the map. और उसके बाद जाके उसको update करो 1 के साथ. Okay? And then you are done. Okay? I hope you have understood the logic of this particular program. This is a very important program. इसे आप ध्यान से solve करो. First, try to do it by yourself. Okay? Once you have done it, I will be writing the program for you guys. Is this part clear? Perfect? Can I trust you guys? Can you write the code by yourself? Do let me know in the discussion section of this particular video that you have understood the logic and you have also written the code by yourself. I want to know how many people are writing the code by themselves. Okay? Now, chalo, over to you guys. Try to write the code by yourself and once done, we'll discuss the solution. Perfect. Alright guys, I hope you were able to write the code by yourself. If not, now is the time. I'll be writing the code and let's get started over here. So what we want to do is we want to count the frequency of each characters in this program, right? So I'm just going to quickly create a class and I'm going to call this particular class as frequency, over here. I'm going to write over here as frequency of characters in string. Okay. And let's bring the public static void main method. And इसको बंद कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है. थोड़ा सा zoom in करते हैं. Let's remove this particular comment and let's get started. So the first thing that I'm going to do is I'm going to create a variable. Let's call this particular variable as input. Again, as I've said, variable names को बहुत अच्छे से देना. ठीक है? Make sure the intent of this particular variable is clear to the interviewer or whoever is reading this code. So I have a string input and the value of input is madam. Now the first thing that I want to do is, of course, we want to calculate the frequency of characters in string. अब मुझे पता है कि अब मुझे map use करना है, तो मैं यहाँ पे बना दूंगा एक hash map. So I'm just going to say hash map और इसमें हम key का data type क्या रखेंगे? Character. Observe, मैं
कैर नहीं लिख रहा, मैं कैरेक्टर लिख रहा हूं. सो दिस इज गोइंग टू बी योर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. कैरेक्टर रैपर क्लास यूज कर रहा हूं और वैल्यू क्या टाइप की होगी? इंटीजर. ओके, एंड आई एम गोना कॉल दिस एज फ्रीक्वेंसी मैप इज इक्वल टू न्यू. ओके, हैश मैप ऑफ व्हाटएवर दिस थिंग इज. ठीक है, दिस पार्ट इज डन. अब फ्रीक्वेंसी मैप में हमारा फाइनल रिजल्ट स्टोर होने वाला है, बट अब इसके अंदर इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए मुझे इस इनपुट को इनपुट एरे में यानी कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा. So again in interview they can sometimes just bluntly ask the question is how to convert a string to a array or character array over here, and for that I'm going to just write input dot to character array. Okay, now when you're going to do an input dot to character array, मुझे एक character array बन के मिलेगा. So I have to store it inside my character array reference. So this is my input character array reference. इसके अंदर इस इनपुट के कैरेक्टर्स यानी MADAM इंडिविजुअल कैरेक्टर्स स्टोर्ड मिलेंगे ऑन द रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस. नाउ आई वांट टू ट्रैवर्स दिस कैरेक्टर एरे. कैसे करेंगे? सिंपल एक फॉर ईच लूप लगा दो इनपुट एरे करके, और इस इनपुट एरे में से इंडिविजुअल वैल्यूज मुझे मिलती जाएंगी. यानी पहले M मिलेगा, फिर A मिलेगा, फिर D मिलेगा, फिर A मिलेगा, फिर M मिलेगा, राइट? और इसको मुझे एक टेम्पररी लूपिंग वेरिएबल में स्टोर करना है. सो आई एम जस्ट गोना क्रिएट दिस कैरेक्टर. लेट्स कॉल दिस एज कैरेक्टर. ओके, सो एक एक करके जो भी हमारे एरेज के कैरेक्टर है वो उस कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर होते जाएंगे. नाउ इफ आई जस्ट write system.out.println character and I decide to run this particular program, so let's click on the play button. आप देखोगे MADAM सब आ गए, बट हमें प्रिंट थोड़ी करना था कैरेक्टर्स को, हमको तो इसे मैप में स्टोर करना है. So what I'm gonna write, I'm gonna write over here frequency map dot put. अब put पहले की मांग रहा है और की का डेटा टाइप होना चाहिए कैरेक्टर, तो वो तो मुझे मिल रहा है. This is my character. Okay. The second thing is value. अब वैल्यू के लिए पहले मुझे चेक करना है कि उस मैप के अंदर वो कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं. So what I'm going to do is I'm just going to write over here frequency map dot get or default. पहले चेक करो कि बाबा मेरा जो कैरेक्टर है वो प्रेजेंट है या नहीं. अगर तो वो प्रेजेंट नहीं है तो रिटर्न 0. Okay, else I'm going to get whatever the count which is present in the map. So this 0 is the default value. अगर कैरेक्टर नहीं मिला तो 0 रिटर्न होने वाला है. ठीक है, एंड इफ द कैरेक्टर इज देयर, whatever the value is there, उसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा. ठीक है, एंड यू आर डन, फिनिश. ओके, नाउ द लास्ट थिंग दैट वी आर सपोज्ड टू डू ओवर हियर इज प्रिंट द वैल्यूज, राइट? कि M का कितना काउंट है, A का कितना काउंट है, D का कितना काउंट है, राइट? सो आई कैन जस्ट राइट अनदर फॉर लूप. सो आई एम जस्ट गोना यूज frequency map, okay, dot key set. ठीक है, dot key set. इससे मुझे इसका इंडिविजुअल कैरेक्टर मिलते जाएगा. ओके, एंड देन आई एम जस्ट गोना से system.out.println. I'm just going to say print C, that is print the character for us, plus थोड़ा सा स्पेसिंग दे देते हैं. ओके, प्लस आई एम जस्ट गोना से frequency map dot get the value of C. C मतलब उस कैरेक्टर का क्या वैल्यू है हमारे मैप के अंदर. So let's run this particular program. Okay, now you can see कि A का वैल्यू 2 आ रहा है, D का वैल्यू 1 आ रहा है, M का वैल्यू 2 आ रहा है, and we are done. Okay, so this is the code for this particular program. I hope आप लोगों को कोड लिखने में कोई तकलीफ नहीं हुई है. Please make sure you practice this particular program carefully. As I've said, it has been asked 7 times in the last 2 months. So it's a very important program. One more important thing, just कभी भी अगर आपको इस प्रोग्राम को वापस रिवाइज करना है, आपको सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है कि आप आपके स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कैसे कन्वर्ट करते हो, एंड जब कभी भी आप मैप में कोई वैल्यू पुट कर रहे हो, राइट, फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, you have to just check whether that particular character is present in the map or not. So for that I am using get or default. अगर तो मुझे मिला
तो उसका काउंट मैं पहले दे दूंगा। अगर कैरेक्टर नहीं मिला तो हम 0 रिटर्न करेंगे, गेट और डिफॉल्ट। दिस इज द इंपॉर्टेंट मेथड, दिस इज द मेन हीरो ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है, सो लेट्स स्टॉप ओवर हियर फॉर टुडे। Go ahead, practice this particular program, and I'll be seeing you guys in the next one. Take care. Bye-bye. Sometimes in the interview, like the interviewer asks you such a basic question, and I start to wondering why such companies ask these basic questions over here. But anyways, ये मेरा काम है कि मुझे सारे questions को cover करना है। So आज की क्लास में भी हम एक बहुत ही सिंपल से इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली पूछा गया था फॉर अ 5 years old एक्सपीरियंस कैंडिडेट। सो एनीवेज, लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So we have been given a string and we need to replace all the vowels with X. Yeah, that's the question. We have to replace all the vowels with X. Yeah. So let's say we have been given a string, and let's say the string is input and input is having the value inside it as name. ठीक है, अब इसका आउटपुट कुछ ऐसे होना चाहिए कि जहाँ पे वॉवल्स है वहाँ पे आप X का सिंबल डाल दो, खत्म। दिस शुड बी द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। ओके, हम लोग ने एक सिमिलर टाइप ऑफ प्रोग्राम को ऑलरेडी सॉल्व किया जिसमें हम लोग वॉवल्स को काउंट कर रहे थे, राइट? और वी वर चेकिंग वेयर एग्जैक्टली हाउ मेनी वॉवल्स आर प्रेजेंट। सिमिलर लॉजिक विल बी यूज्ड हियर आल्सो। हम क्या करने वाले हैं, इस स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे, राइट? इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को निकालूंगा मैं। सो लेट्स से इफ आई एम गोना कन्वर्ट इट इनटू कैरेक्टर एरे, आई एम गोना गेट समथिंग लाइक दिस 0 1 2 3। एंड इस एरे के अंदर मेरे पास पहला N कैरेक्टर आएगा, फिर A कैरेक्टर आएगा, फिर M कैरेक्टर आएगा, फिर E कैरेक्टर आएगा। लेट्स से वी आर गोइंग टू रेफरेंस दिस पर्टिकुलर एरे विथ इनपुट एरे, राइट? इसको इनपुट एरे के साथ रेफरेंस कर लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ कैरेक्टर एरे। यू विल स्टार्ट ट्रैवर्सिंग दिस पर्टिकुलर एरे using the simple for each loop. So this is going to be my input array. Okay, और मेरे पास individual characters आएंगे. Let's call this as current character. And what I need to do over here, guys, is I need to check कि बाबा जो character आ रहा है वो vowel है क्या? Is this part clear? Now, of course, we have to return a string back. And you know that whenever you are going to create a string, it is always better that you use string builder. So I would have created a string builder. Okay. Let's say SB, okay, is equal to new string builder. यानी मैं end में SB को print करने वाला हूँ. That is my string builder. I'll be printing SB over here. So what I'm going to do is, I'm going to check if current character double equal to A, पहला vowel, और current character, okay, equal to E, single quote, or current character is I, or current character is O. Or, sorry, why did I write double quotes? My bad. Single quote. Or current character is U. Okay? A, E, I, O, U, whatever. Okay. अगर तो मेरे current character A हो रहा है या E हो रहा है या I हो रहा है, O हो रहा है, U हो रहा है, then what I'm going to do is, I'm just going to say SB dot append. इनको मत अपेंड करो, X को अपेंड कर दो, X को अपेंड कर दो। Else, अगर नहीं है, else the current character is not A, E, I, O, U. What I'm going to do is, I'm just going to append whatever that character is. Finish.
जो भी कैरेक्टर है उसी को प्रिंट कर दो, दैट्स इट। अब इसको थोड़ा सा बेटर करने के लिए आप क्या कर सकते हो बताएं कि ए ऐसा भी लिखा जा सकता था, ई ऐसा भी लिखा जा सकता है, राइट, कैपिटल केसिंग। सो व्हाट यू गोना डू इज यू गोना कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। So I would have used two lowercase first. Okay, so input dot two lowercase. Okay, and I'm going to store it back into my input string itself, and then I would have converted into character array. So इससे क्या होगा कि मेरा जो check होगा ना वो case insensitive हो जाएगा. Are you getting the point? So you can have, no matter whether the string is having vowels in uppercase, lowercase, doesn't really matter. We have just converted everything into lowercase and now we are getting the output. So I hope you have understood the logic of this particular program. Write the code once, and the most important thing is just remember the logic. And the most important logic is how to check whether a character is a vowel or not. So अगर मुझे check करना है कि vowel है या नहीं, आपको बस ये condition याद रखनी है, ठीक है। दिस इज द हार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, एज सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद फॉर लूप के बाहर मैं सीधा सिस आउट कर देता हूं sb.toString. Okay, I would have get the same output, nxmx. Okay, as simple as that. Practice it off. Okay, once you have done writing this particular code, you can go to the later end of the video where I'll be writing the code for the same. All right, cool. Let's get started. Alright guys, I hope आप लोगों ने कोड लिख लिया था. Just for the formality, I'll be writing the code. इतना कुछ ज़्यादा difficult program है नहीं ये. But still the thing is, जितना ज़्यादा आप कोड करोगे, जितना ज़्यादा आप लॉजिक को बिल्ड करने की कोशिश करोगे, इसमें आप ही का फ़ायदा है. You will have more confidence on solving new problems. Okay? That's the reason, no matter how small the problem is or how complex the problem looks, just keep on solving. Okay? You cannot just one day decide कि बाबा I'll be solving the problem, okay, and I should get it in one go. ऐसा कभी नहीं हुआ है, किसी के साथ नहीं होता. So you have to force yourself to remember the previous solutions so that when you see a new problem, you'll try to see whether I can use it in my new problems or not. I hope that makes sense. Anyways, so let's get started. So I'm just going to quickly create a class. Let's call this particular class as replace vowel with x, something like that. I'm going to have this public static void main method inside it. Okay, इसको minimize कर देते हैं and इसको भी comment को भी निकाल देते हैं. थोड़ा सा zoom in करते हैं. Now let's start. Let's say we have a string input. Okay, and the string input is name. Okay, as I've said, the first thing that I'm going to do is I'm going to convert it into lowercase. So lowercase में convert कर दो input.to lowercase. Okay, and what I can do is I can just store it back into my input. Now we have to print nxmx, right? So we are going to use the string builder over here. Why? Because memory efficient hota hai. Let's call this as result is equal to new string builder. And what I'm going to do is I'm going to start traversing this particular character array. So over here input.to character array yahi pe kar deta hu. Okay. And I'm going to get my individual character. Let's call this as current character. And now what you're going to do is you're going to check if current character is equal to A or current character is equal to AE. Okay. Or whatever is the logic, I'll just start putting it off over here. I, O, U. Okay. If my current character is these vowels, what I'm going to do is I'm just going to say sb.append, result.append x, the x character. Okay. Else, this result.append the current character. That's it. Okay, this is my else, this is my for loop where it ends, and I'm just going to say sys out result dot toString finish. Okay, this is the full program. Now if I save it, run it, tada, done.
बट लेट्स से कि बाबा उन्होंने बोला कि मेरे को n कैपिटल में ही चाहिए था, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप क्या करोगे, इसको कमेंट कर देना या इसको निकाल देना। ओके, ये आपका लोअर केस का कंपैरिजन के लिए हो गया। आप इसके अंदर और कंडीशंस डाल दो जहां पे आप कैपिटल A लगा देना, कैपिटल E लगा देना, कैपिटल I लगा देना। ओके, सो अब मैंने दोनों चीज़ें कंसिडर कर ली कि बाबा वो कैपिटल है या लोअर है, सारी चीज़ें इंक्लूड करके रख दिया। इज दिस पार्ट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? ओके, सो नाउ इफ आई रन इट वर्क्स। सो वेदर इट इज़ गोइंग टू बी इन अपर केस, लोअर केस, सब जगह वो उसको x को मार देगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बेटर कर देते हैं। ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल दीज मल्टीपल कंडीशंस एट वन प्लेस, इसको कट करो एंड व्हाट यू डू इज you create another method called public boolean. We're going to return boolean, and since we are not creating any object, so I'm just going to say this is going to be a static method. Public static boolean is vowel. Okay, and you're going to give me the character, and here I will do the check. So I'm just going to write over here if ये सारी चेक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। Let's call this current character only, वरना सब जगह चेंज करना पड़ेगा। Okay, I'm just gonna return true. Okay, else return false. जब कभी भी ज़्यादा कंडीशंस होती है ना, अगर आपके if के अंदर you see I have multiple conditioner, I need to check current character is A, current character is so on and so forth, तो इससे कोड की रीडेबिलिटी बहुत ख़राब हो जाती है। उससे अच्छा आप क्या करो कि वो सारे कंडीशंस को एक मेथड में डाल दो और इस मेथड को यहाँ पे कॉल कर दो, इज वॉवल करंट कैरेक्टर, फिनिश। आउटपुट सेम ही रहने वाला है, बट इससे आपकी जो रीडेबिलिटी है कोड की वो बेटर हो जाती है, और सबसे ज़्यादा इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा कि वाह, इसने ध्यान ये भी रखा था कि कोड की रीडेबिलिटी खराब ना हो। ऑलराइट, दैट्स इट, दिस इज द होल कोड नाउ। Okay, with all the checks, whether you want to do case sensitive check, whether you want to do case insensitive check, सारी चीज़ें कंक्लूड कर ली। हमने एक अलग मेथड ही बना दिया जिसके अंदर हमारी सारी कंडीशंस बढ़ी है। इस वॉवल चेक करेगा कि बाबा जो करंट कैरेक्टर है वो वॉवल है या नहीं। अगर तो वो वॉवल रहेगा तो इट्स गोना रिटर्न ट्रू, एल्स इट इज़ गोइंग टू रिटर्न अस फॉल्स, एंड वी आर डन। That's it for this particular lecture. I hope you have understood the logic for this particular program. प्रैक्टिस कर लेना, सॉल्व कर लेना। यू नेवर नो व्हेन द लक इज इन योर फेवर एंड यू गेट ऑल दीज सिंपल क्वेश्चंस आल्सो। तो देखने में क्या ही जाता है, राइट? सो आई विल स्टॉप ओवर हियर नाउ एंड आई विल बी सीइंग यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। एंड आज की क्लास में हम एक बहुत ही सिंपल सा इंटरव्यू क्वेश्चन को समझेंगे, उसके लॉजिक को बिल्ड करेंगे। आप लोगों ने ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं देखा होगा, राइट? द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। जब कभी भी आप अपने सिस्टम पे कोई फॉन्ट को इंस्टॉल करते हो, तो अगर आप उसकी फॉन्ट फाइल, जो टिफ फाइल बोला जाता है, अगर आप उसे ओपन करोगे तो आपको हमेशा ये स्टेटमेंट दिखेगा। क्यों? क्या ये बहुत ज़्यादा फनी स्टेटमेंट है, कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है? नहीं, बट द पॉइंट ओवर हियर ना गाइज इज कि बाबा व्हेन यू लुक एट दिस पर्टिकुलर इंग्लिश स्टेटमेंट, यू विल ऑब्जर्व कि इसमें इंग्लिश के सारे 26 लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स प्रेजेंट है। सो वो एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है ताकि आपको पता चले कि वो फॉन्ट में एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट कैसे दिखेगा। ठीक है? सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग ओवर हियर इज कॉल्ड एज अ पैनग्राम। ठीक है? एंड वी हैव टू राइट अ जावा प्रोग्राम टू टेल whether a string is pangram or not. ठीक है? We have to write a Java program to tell whether a string is pangram or not. Now over here guys, इसके लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। See, the first thing which is a very basic thing that we need to remember over here is कि बाबा अगर तो कोई स्ट्रिंग को पैनग्राम होना होगा, अगर तो कोई स्ट्रिंग को पैनग्राम होना होगा
तो उसके अंदर मिनिमम 26 लेटर्स होंगे, यानी जो उस स्ट्रिंग की लेंथ होगी, द लेंथ विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 26. इज दिस पार्ट क्लियर? 26 से ज्यादा होगी ही होगी. इज दिस पार्ट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? So the first check whenever you will be building the logic or whenever you're going to write the program, आपको पहली चीज ये चेक करनी है कि उस स्ट्रिंग का लेंथ 26 से ज्यादा है क्या, ज्यादा या इक्वल टू है क्या. Now once that is done, आपको क्या करना होगा, आपको इस स्ट्रिंग के अंदर मुझे ट्रैवर्स करते जाना है, ठीक है, एंड मुझे चेक करना होगा कि बाबा इस स्ट्रिंग के अंदर A है क्या, इसके अंदर B है क्या, इसके अंदर C है क्या, डॉट 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 ऐसे करके आपको Z तक जाना पड़ेगा. नाउ द थिंग ओवर हियर इज, in order to check whether a certain character is present inside the string or not, आप कैसे करोगे? There is an inbuilt method inside the string. What is that? आप बोलोगे index of method. अगर मैंने index of method को एक character पास किया, ठीक है, let's say this particular string is input and I say input dot index of A, तो ये मुझे बताएगा कि A कहाँ पे आ रहा है. So this is going to be 0, 1, 2, spaces 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, okay? Somewhere over here, let's say this is 30, मेरा काउंटिंग ऊपर नीचे चला गया, तो मुझे उसका इंडेक्स दिखाएगा 30, okay? Now, let's say अगर मुझे t ढूंढना होता, जो मुझे पहले कर लेना चाहिए था, but the input dot index of t, बट बाबा अगर हम देखोगे तो मैंने t तो लोअर केस में लिखा है, ये मुझे t यहाँ पे ये वाला ढूंढ के देगा. Okay, it's not going to give me this zeroth index. Why? Because capital T is a different character. So you have to also make sure that you make it a case insensitive search. तो आप इसके अंदर क्या करोगे, इस पूरे स्ट्रिंग को पहले टू लोअर केस में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ताकि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में हो जाए और फिर आप उसको चेक करो, तो आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा. ओके, लेकिन फॉर इंस्टेंस लेट्स से यहाँ पे G नहीं है, ओके, G नहीं होता, दिस इज G वर्ड इज नॉट देयर, और कहीं पे G आ रहा है क्या? नहीं. So over here, if I would have done input dot index of G, आपको आउटपुट आता -1. Why -1? Because G है ही नहीं इसमें. तो over here guys, अगर मुझे कभी भी index of a particular English alphabet -1 आता है, इसका मतलब है कि this is not a pangram because that particular alphabet is not present inside this string. Is this part clear to everyone? So इसमें हम 3 स्टेप करने वाले. पहला स्टेप ये होगा कि बाबा मैं पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करूंगा. Why would I convert it into lower case? So that जो मेरा कंपैरिजन होने वाला है इंडेक्स ऑफ में, वो सारे लोअर केस कैरेक्टर्स पे ही हो. ठीक है. The second thing that I will be doing over here is checking the length of the string. It should be greater than और इक्वल टू 26. 26 तो होना ही चाहिए. अगर वो 26 है तो ही मैं जाके उसे ट्रैवर्स करूंगा, मैं एक लूप में जाऊंगा एंड आई विल चेक whether these characters or my English alphabets are present inside the string or not. Because I want to search those 26 letters, that is I want to search these individual alphabets, these 26 alphabets or characters, we will be using this index of method of the string class and उसमें मैं चेक करूँगा कि बाबा ये particular character हमारे string में present है क्या. अगर तो present है तो मुझे index मिलेगा और अगर तो present नहीं है तो मुझे क्या मिलने वाला है? -1. This is the second time I am using the index of method. Do let me know in the discussion section कि मैंने पहली बार index of method को कहाँ पे use किया था in this entire series. Okay, and that's it, the entire logic of this particular program. ठीक है. Now I want you guys to write this particular program by yourself first. अपने हिसाब से बिल्ड करो. मैंने आपको लॉजिक बता दिया, अब आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपको बूलियन यूज करके बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, या आपको स्टेटमेंट प्रिंट करना है. इट्स ऑल अप टू यू. ओके, राइट द कोड बाय योरसेल्फ. ठीक है. एंड इफ यू गेट स्टक समवेयर देन यू कैन वॉच द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो जहां पे मैं ये सोल्यूशन डिस्कस करूंगा. ठीक है.
Is this part clear to everyone? Okay, go ahead, start writing the program. Alright guys, I hope you were able to write the code, and for some reason if you were not able to write the code by yourself, now is the time. Just cross-check your code and try to fix it. Okay, so just quickly मैं एक class बना देता हूँ, and I'm going to call this particular class as Pangram. Okay, and I'm just going to click on finish. Okay, and inside this particular class I'm going to have my main method. आजा इसको minimize कर देते हैं यार, and we're just going to do a Control Shift F, fix the formatting, थोड़ा सा zoom in कर लेते हैं. Now what I'm going to do is I'm going to quickly create a input string, and this is going to be the value. Just copy paste कर लिया मैंने, and over here guys, this is a Pangram string because it has all the 26 letters of your English language. Now the first thing that we are supposed to do is we have to make this particular string into lowercase for better comparison and better checking. So I'm just going to convert everything to lowercase. And how do you do that? You're going to just say input dot to lowercase. Okay? And whatever is going to be the input, I will be storing it back into my input variable. So agar मैं इसे sysout कर दूं, just to show you the output, if I'm just going to do a quick sysout input, you will see that I will be getting everything in the lowercase. Is this part clear? Now, there are multiple ways to write this particular program, but the most simplest way is to just create a method abhi ke liye. So I'm going to create a method called checkPangram, and to this particular method I will be passing my input string. So I'm just going to bring my cursor over here and I'm going to create this particular method. ठीक है? अब checkPangram, check का दो output हो सकता है, true या false, right? So I'm just going to say it's going to return me boolean कि बाबा या तो ये Pangram है या तो ये Pangram नहीं है. ठीक है? Now observe what I'm going to do. Focus on this particular method checkPangram. I'm just going to say if input dot length is less than 26, is less than 26, तो मैं रिटर्न कर दूंगा false. बिना देखे, मेरे को कोई प्रोसेसिंग ही नहीं करनी, मैं सीधा बोल दूंगा कि बाबा this string is not a Pangram because इसमें 26 alphabets तो है ही नहीं. So this is going to be a quick check and I'm just going to return false. Now, if the input length is greater than or equal to 26, अब आगे का चेकिंग स्टार्ट होगा. मैं एक फॉर लूप लिखूंगा और ये फॉर लूप कैसे चलने वाला है, ये चलेगा हमारे लेट्स से एक वेरिएबल बना देता हूँ I, and it's going to start from the character A and it's going to go all the way up till the last character that is Z. ठीक है? And I'm just going to say I++. ठीक है? अब अगर मैं इस पे sysout कर देता हूँ just to show you, okay? If I'm just printing I for a moment, and for now I'm just going to return let's say true, something like that. Okay, मुझे सिर्फ इसके output से मतलब है. So if I'm just going to run this particular stuff, you will see all the characters from A to Z are getting printed. Characters are getting printed. तो मुझे सारे English के A to Z वाले characters मिल गए, but मुझे print नहीं करना था, मुझे characters तो मिल गए. अब मुझे check करना है कि if input dot index of this particular character, अगर तो character present है तो उसका index कुछ ना कुछ आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है. लेकिन अगर आपका character इस string में present है ही नहीं, तो बाबा उसका जो index होगा वो एक negative number होगा. So I'm just gonna say if input dot index of I is less than 0, मतलब if it's a negative number, just return false. Khatam. Okay, and done. So हो गया, that's it, that's the program. Because if it's gonna be not present, आपको एक negative index मिलने वाला है और मैं return false कर दूंगा. ठीक है, मुझे बाकी की string भी देखने की ज़रूरत नहीं है. Now check Pangram करने के बाद मुझे एक output मिलने वाला है. So I'm just gonna say boolean result. And I'm just going to say if result, I'm just going to say sysout, it's a Pangram, else I will just print out it's
not a pangram. Khatam kahani. ठीक है? So if I run this particular stuff, you know what you're going to get the output. It's a pangram. But let's say अगर मैं इसमें से कुछ भी characters निकाल देता हूँ, let's say मैं dog निकाल देता हूँ, and if I run it, it's not a pangram because the all 26 letters are not present inside this particular string. But let's say because the length is less than 26 or something, what you can do is let's play some other stuff. I just put A again, and if I run it, ये अब ही मुझे यही बोलेगा it's not a pangram. Alright? So अगर मैं यहाँ पे सिर्फ जतिन भी लिख देता हूँ तो ये लूप में जाएगा भी नहीं. क्यों नहीं जाएगा? Because the length itself is less than 26, right? So ये तो return false सीधा कर देगा. Are you getting the point? So this is the whole code for checking whether the string is pangram or not. Okay, very simple program. Okay, try to write it again if you are not able to write it on the first attempt. इसे please अच्छे से practice कर लेना. That's it for this particular video. Now I'll be seeing you guys in the next one. Till then, take care. Bye-bye.